Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Key domestic indices end in red. Sensex closes at 66,018. Nifty settles at 19,802. Prime Minister announces completion of Global Digital Public Infrastructure Repository and creation of Social Impact Fund for Global South. And Indian Steel gets Made in India tag. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक आज घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 66,018 दर्ज हुआ, निफ्टी 19,802 पर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा कोष और सामाजिक प्रभाव निधि पूर्ण होने की घोषणा की और इंडियन स्टील को मिला मेड इन इंडिया टैग। घरेलू शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच एक और जहां बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक मामूली 5 अंक गिरावट के साथ 66,018 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 10 अंक टूटकर 19,802 दर्ज हुआ। हालांकि विस्तृत बाजार की ओर चलें तो वहां निवेशकों की लिवाली देखने को मिली और कारोबार के अंत में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.15% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.44% की वृद्धि देखने को मिली। The key domestic indices ended flat amid mixed cues from global share markets. BSE Sensex fell marginally by 5 points or 0.01% to finish at 66,018. NSE Nifty slipped 10 points or 0.05% to settle at 19,802. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose by 0.15% and the small-cap index added 0.44%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 14 companies appreciated while 16 companies declined. Indus Inbank gained 1.10%, JSW Steel rose 0.94% and Bharati Airtel added 0.83%. On the other hand, Ultra Cement fell 1.75%, Larsen & Toubro declined 1% and Bajaj Finance lost 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 12 sectors gained and 8 declined. Realty and oil and natural gas gained 1.2%. Energy and telecommunication rose by 0.8% and metal rose 0.53%. On the other hand, healthcare declined 1.13%, information technology fell 0.46% and consumer durables lost 0.44%. The overall market breadth was positive as shares of 1,997 companies appreciated while those of 1,706 declined. A total of 131 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 83 रुपए 34 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.34% घटकर 103.62 पर चल रहा था। Back to our Sensex figures, Siddharth. What are the factors you think which has brought the Sensex down by 5 points? 0.01%, not much really, but at 66,000 when we've seen it going below 65, how do you rate the health of the stock exchange, which usually they say reflects the health of the country's economy? Yes, you're absolutely right. It also reflects the state of the economy, plus markets sometimes also are not a true reflection of the fundamentals also. So that also is an issue. But as far as now the market, I think we saw some days back, about 15-20 days, there was a correction in the market. I think that was basically triggered by the US interest rates, which had climbed up. So we had seen foreign institutional investors going back, taking back, booking profits. But now I think if we look at the India story, so more or less India is going to be one of the fastest growing economies in the world. It continues to be that stable economy tag. Plus if you look at our capital expenditure of the government, it is on track. So, and I'm talking of the big broad parameters. So if you look at our tax collections, we are robust. Yes, absolutely. So even whether it's both, GST or direct, both of them. So both direct, indirect side, as you rightly said. Plus if you look at also, there was a concern on the inflation because of the high food prices. I think government as well as the central bank both have together taken steps, which has also now started showing results. So I think all in all, and fiscal deficit, I think government continues to be, it's committing to its 5.9 fiscal deficit target for the current financial year. So, and if you see the last month's export numbers also, so we are again back in the positive, though still a small number, but we've clawed back to the in the positive territory as far as exports are concerned on month-on-month basis. So on year, if you compare last month's export numbers to the year before. Yes. So I think India growth story is intact, which also reflects somewhat in the stock markets. Plus if you look at our results, quarterly results, which are I think companies are posting good profits. So I think there is no reason for worry as far as stock markets are concerned. Yes, anybody who's investing in stock market, as we always say, we always maintain that you should look out for good companies, check their fundamentals, check the numbers, and then invest and stay invested for a long time. सिद्धार्थ जी, यहाँ यदि हम आज की गतिविधि पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, थोड़े से लाभ के साथ बंद हुए हैं। छोटी और मझोली कंपनियों में निवेशकर्ताओं की अभिरुचि क्या दर्शा रहा है बाजार के? मनोज जी, ये केवल आज का ही रुझान नहीं है। अगर आप पिछले कुछ समय का रुझान देखें तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें काफ़ी बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और एक और बात यहाँ पे मैं कहूँगा कि आज जो कंपनियाँ छोटी हैं या जो बीच मिड कैप हैं वही कल की बड़ी कंपनियाँ हैं, और ये कुछ नए जो स्टार्टअप्स हैं, नए आइडियाज़ को भी रिफ्लेक्ट करती हैं ये कंपनियाँ। तो आज ही मैं किसी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, चूँकि हम लोग यहाँ पे किसी कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करते, तो मैं देख रहा था उसके शेयरों में काफ़ी तेज़ी है। तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो काफ़ी ऊपर, मतलब उनमें एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उनमें काफ़ी जो है आप देखेंगे तेज़ी भी रही है पीछे लेकिन अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि अभी भी इस लेवल से भी और अभी ऊपर जा सकते हैं ये शेयर्स। तो एक कारण वो है, और प्लस वो कॉन्सेप्ट बेस्ड कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, नए आइडियाज़ हैं। तो इस तरह का अभी जो मार्केट में इस तरह की कंपनीज का भी एक एक्सेप्टेबिलिटी है, उनको एक नया आयाम मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है। सिद्धार्थ जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे जो श्रोता हैं उन्हें दी है कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत कहीं बहुत अधिक अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि हम कंपनी का नाम नहीं लेते, लेकिन क्या उन चुनिंदा क्षेत्रों को मतलब के बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? लेकिन पहले श्रोताओं, हम यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेंगे। विराम के बाद फिर से आपके लिए यही सलाह लेकर अपने विशेषज्ञ सिद्धार्थ जी के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से विराम के लिए।
मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ आज आर्थिक विशेषज्ञ हैं सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, आपने कुछ स्टार्टअप सेक्टर की चर्चा की। कंपनी का नाम हम नहीं लेते, यह हमारी नीति है, लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर स्टार्टअप कंपनियां या जो स्थापित कंपनियां भी हैं, उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत जो गिरावट वाला जो हमारा पीरियड रहा है, वैश्विक कह लें, जो निवेशक हमारे हैं एफपीआई, उन्होंने लगातार लिवाली की है, पूंजी ले गए, उसके बावजूद बाजार में मजबूती बनी रही। तो वह कौन सा क्षेत्र आपको दिख रहा जहां पर कि स्टार्टअप कंपनियां धमाल मचाती दिख रही? देखिए, बेसिकली स्टार्टअप कंपनीज का कॉन्सेप्ट मोस्टली आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो आप चाहे वो फिनटेक कंपनीज कह लें, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसको हम अगर एक्सपैंड करके बात करें, या फार्मा से जुड़ी नई कंपनीज हों, तो इस तरह की, या प्योर टेक्नोलॉजी कंपनीज हों, आईटी कंपनीज के आइडियाज़ हों, तो इस तरह की कंपनीज हैं, इस तरह के सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नई कंपनीज, नए स्टार्टअप्स दिख रहे हैं और उनमें लोगों की रुचि दिख रही है, लोगों का विश्वास भी कायम हो रहा है। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो उस वजह से अच्छा, उनमें एक और चीज़ दिखेगी, आपको दिखेगा कि बड़े बड़े जो अभी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, वो इन नए स्टार्टअप्स, नए आइडियाज़ में स्टेक लेके उनको भी एक और उनको पुशअप दे रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। And do you see, Siddharth, now that, as Manoj just asked, that we do feel that people are now having more confidence, especially the middle class has greater confidence in mid-cap and small-cap. On the other hand, we also find that there is increase in domestic investors. Now, they are showing greater interest in investing in India. Is this a sign of all the reforms that have taken place, be it GST, be it digitization, which has removed middlemen and so on and so forth, so that the investor has now greater confidence in the government of the country? You have raised a very important point. I think this is one of the biggest factors which is giving stability to Indian stock market. So now currently, even if there is small setback in terms of if FIIs withdraw money, but we have huge number in terms of retail investors who are coming in various forms. Some of them are coming directly to the stock market, and some of them, and large numbers through systematic investment plan, which we call as SIPs. Right. So our own domestic retail investors, that number is really big, and I would say why that is, and that shift is also, or as you rightly said, it is the stability in our economic policy, the India growth story, the current faith in India's fundamentals, macroeconomic fundamentals, and the state of the economy. All that coupled with, you would also see, people are also with time getting educated, with technology, with information flowing to people. So I think that is a reason. If I would give you an example, now banks are finding it difficult to get money in terms of, because of the interest rate that they are offering, vis-a-vis what people are preferring to come to the stock market rather than keeping their money in the banks in fixed deposits. So it's a challenge for the banks also. So I think it is also a lot of work has, or I would say ground has been covered by the mutual fund industry in educating people also about the advantages of being investing in markets. But yes, obviously, as we always say, and as they all also propagate, that you should, if you are investing in market, you should be doing it in a very careful manner, educate yourself and be invested for a long term. श्रोताओं, बहुत अच्छी सलाह हमारे विशेषज्ञ सिद्धार्थ जी ने दी है कि लंबी अवधि के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म में बहुत लाभ कमाने की उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना रखें, और लगातार बने रहें क्रमबद्ध रूप से, तो आपका अंततः मुनाफा बैंक या अन्य जो कह लें कि टूल्स हुआ करते हैं, औजार हुआ करते हैं पैसा कमाने के, उनकी तुलना में बेहतर आपको लाभप्रदता शेयर बाजार में दिखेगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नेतृत्व वाली 2 पहलों के पूर्ण होने की घोषणा की है। इनमें से एक वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा कोष और एक सामाजिक प्रभाव निधि है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मीडिया पर कल आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में ये घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप ने वैश्विक DPI एजेंडा की प्रगति का नेतृत्व किया है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने पर पहली बार बहुपक्षीय सहमति इसी कार्य समूह के प्रयासों से संभव हुई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक ने सर्वसम्मति से 3 DPI डिलीवरेबल्स का समर्थन किया, जिसमें सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए DPI के निर्माण हेतु एक रूपरेखा तैयार करना, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में DPI विकास के लिए वित्त जुटाना और एक वैश्विक DPI कोष का निर्माण करना शामिल है। इस ऐतिहासिक सहमति की पुष्टि G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के एक भाग के रूप में भी की गई थी। इसे हम एक कहें कि भारत ने जो शुरुआत की वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और इससे वैश्विक जो प्रधानमंत्री का सपना है कि एक सामूहिक भागीदारी, सामूहिक जिम्मेदारी सबकी सुनिश्चित हो, उस दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण हम कदम माने। बिल्कुल आपने ठीक कहा मनोज जी। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि मतलब वो कॉमनली शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उससे क्या मतलब एक तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, फिर जैसे उसमें एक एग्जांपल मैं दूं तो आपका जैसे भारत का UPI है, तो वो भी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक सक्सेस का उदाहरण है जी। तो और अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे कई देशों से ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और चूंकि सॉवरेन टू सॉवरेन, क्योंकि अगर आप आज के दिन कहीं से पैसा भेजना चाहते हैं तो कोई ना कोई माध्यम आपको अपनाना पड़ता है। उससे कई बार एक अनिश्चितता बनी रहती है, एक श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जो UPI ने प्रदान किया है वो ये है कि एक श्योरिटी है बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सो ये जो बात आप कह रहे हैं, इसी के तहत मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो G20 में हिंदुस्तान ने लीड ली इस साल ग्लोबल लेवल पे, तो मुझे लगता है उसी को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको और ब्रॉड बेस्ड बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल किया जाए और उसको शेयर किया जाए। यहाँ पर ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इसमें जो एक कह लें कि उद्देश्य है कि जो ऐसे देश जिनकी आय कम है उनकी सहभागिता की ओर जो कदम उठाए गए हैं वह क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं देखिए, अभी G20 में जो एक गतिरोध बना हुआ है वो भी ये है कि कुछ जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग होनी है ऐसे देशों की जहाँ पे जिनका डेट बहुत बढ़ गया है, तो उनको उस डेट से कैसे उबारा जाए और उनको कैसे जो दुनिया में जो विकास है और उस विकास की जो धारा है उसमें जोड़ा जाए। तो इसको लेके एक बहुत बड़े लेवल पे प्रयास हो रहा है। हालांकि अभी मैं ये कहूँगा कि इसमें सफलता पूरी तरह से नहीं मिली है और उसी का एक पार्ट है मल्टी जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, उनकी जो रूपरेखा है, उनकी जो फंडिंग की जो पैटर्न है, उसको भी किस तरह से इन डेट स्ट्रेस जो कंट्रीज़ हैं उनको किया जाए ताकि एक ब्रॉड एग्रीमेंट हो और उन सबको हम साथ लेके और उनको उनकी जो परेशानी है करेंटली जो ये डेट को लेके है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी है और तो उसमें एक सहभागिता बने। तो इस पे प्रयास हो रहा है। अभी मुझे लगता है कुछ ब्रॉड बिंदुओं पर एक सहमति है, लेकिन आगे स्टेप्स जो लेने हैं उनको लेके अभी काम और होना बाकी है। यानी देश के स्तर पर सबका साथ सबका विकास का जो कह लें कि जो प्रयास था वह वैश्विक स्तर पर हम पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक मानव हो, जो हमारी सनातन भारतीय कह लें कि सोच रही है उस दिशा में बढ़ते कदम इसे माने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें हमको अन्य देशों से भी सपोर्ट मिल रहा है और ऑब्वियसली चूंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है तो एग्रीमेंट्स होने में थोड़ा समय लगता है। Yeah, absolutely. I think we'll be exporting digitization process to other countries apart from other exports very soon. All right, let's take the story forward. Terming deep fakes as a new threat to democracy, IT Minister Ashwini Vaishnaw on Thursday said that the government will come up with new regulations soon to tackle deep fakes. The minister, who met social media platforms on the deep fake issue on Thursday, said that companies have agreed on the need to clear actionable work in areas such as detection, prevention, strengthening of reporting mechanism, and raising user awareness. I quote, "We will start drafting regulation today itself, and within a short time, we will have a new set of regulations for deep fakes. This could be in the form of amending existing framework or bringing new rules or new law," unquote, Vaishnav told reporters. Deep fakes have emerged as a new threat to democracy, the minister said. He also said that we will have our next meeting in the first week of December that will be on follow-up action on today's decisions and also on what should be included in the draft regulation.
Deepfakes refer to synthetic or doctored media that is digitally manipulated and altered to convincingly misrepresent or impersonate someone using a form of artificial intelligence. Well, before we go on any further and discuss this, let's have a short commercial break and shall be back soon, friends. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Well, welcome back to Market Mantra, friends. We just did a story on, we just talked about deepfake. We have with us our expert Siddharth Singh with us. Siddharth, when you talk of deepfake, a term which nobody knew a few months ago, a few weeks ago, and suddenly now it's all over. And though we were all talking very highly of, we do talk of digitization, we were talking very highly of artificial intelligence, but now the crevices are now opening up and telling us that, hold on, I mean, these are the pitfalls of artificial intelligence, and especially more to journalism. I mean, how would you convince that this is not, this is deep fake, this is the real and this is the unreal part? We need to tighten up our sources, we need to tighten up our laws as well. Where do you see this going in the whole Indian economy? As you rightly said, that we will have some pitfalls of technology. So I think this is one of the side effects of artificial intelligence. So, and I think last 10 days, I think in the country has been rocked by at least 2, 3, 4 big deepfake cases, and none other than the Prime Minister himself was in one of the songs or something like that. Yes, which he never sang. Which he never sang. So, and some Bollywood actresses. So, I think deepfake is something we would have to tackle immediately, I think, and that is why I think taking cognizance, and I think Prime Minister had also expressed his concern on this. So, I think as a follow-up of that, the IT Minister today held the meeting with all the concerned stakeholders, the social media platforms, and I think they have trying to come up immediately with at least some regulations to at least to start with, and to ensure that the problem doesn't take a form where it becomes very difficult to then kind of tackle it or control it. सिद्धार्थ जी, यहाँ पर डीप फेक पर कह लें कि लंबी चर्चा हुई है मीडिया में और उसके अलावा आम जनमानस में भी, लेकिन हमारे श्रोताओं के नज़रिए से, जो आम श्रोता हैं उनके नज़रिए को ध्यान में रखते हुए कृपया ये बताएं कि डीप फेक के आयाम क्या होते हैं और किस तरह ये आम आदमी को भी प्रभावित कर सकता है, उसे बचने में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? डीप फेक देखिए मनोज जी, आपका वीडियो के फॉर्म में हो सकता है कि मनोज जी को किसी वीडियो में दिखा दिया जाए जो कि मनोज जी ना हो, आपके नाम से कोई आपकी आवाज़ आपके नाम से दिखा दी जाए जो कि बात आपने ना बोली हो, तो कोई पिक्चर हो, कोई ऐसी बात जिससे कि समाज में कोई उत्तेजना फैल जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी मतलब रिलीजियस कोई वो हो जाए, तो मतलब आपको ये केवल रिलीजन ही मैं क्यों रोकूं, मैं कहता हूँ कोई हो सकता है आपके वित्तीय कोई उस पर कोई और आदमी कुछ और आपकी आवाज़ बदल के कहीं आपके नाम पे बात कर ले, आपका प्रयोग कर ले, उसको मिसयूज़ कर ले, तो मुझे लगता है ये काफ़ी चिंताजनक बात है और जल्दी इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो भी आप कह रहे हैं जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी वेरीड हो सकते हैं, क्योंकि समाज में कुछ भी उत्तेजना, आक्रोश कुछ भी हो सकता है और किसी न किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को भी आप कहीं जगह, जो हमने अभी 2 उदाहरण देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी भी हिंडर हो रही है, तो ये है तो काफ़ी चिंताजनक। और मुझे लगता है इस पर कहीं ना कहीं जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मिसयूज़ हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने होंगे कि ये एक तो प्लस एजुकेट करना होगा लोगों को। तो मुझे लगता है ये सब टेक्नोलॉजी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हम आजकल देखते हैं आईटी प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज़ हो के आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है, आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उसी फॉर्म का ये और एक क्रूड जो है रिफ्लेक्शन है। क्रूर के साथ साथ क्रूर भी कहें, क्योंकि जो इसका इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनका इरादे बड़े ही खतरनाक होते हैं। बिल्कुल है जी, मतलब कुछ लोग अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आपका मिसयूज, आपकी आवाज़ का, आपके और कुछ 1-2 लोग ने ऐसे किया भी है, पता चला हस्बैंड की आवाज़ में किसी ने फ़ोन किया, मुझे बैंक में पैसे डाल दो, डाल दिए, पता चला वो था ही नहीं, आवाज़ बिल्कुल उनके हस्बैंड जैसी मिलती थी। वेल, दीज आर द, एज दे से, साइंस कैन बी अ boon and bane, so we have to kind of discriminate and work around it.
Let's move on. Well, we talk so much about Made in India. The consultative committee meeting for the Ministry of Steel was convened today to discuss the progress on the first of its kind novel initiative by the Ministry of Steel and the Ministry of Commerce and Industry to introduce branding and labeling of Made in India steel products in the global market. Apart from making Indian steel products more attractive to buyers, this would also ensure standardized quality of goods. Made in India branding provides for labeling of domestic steel products with details of the product and a Made in India logo along with a QR code. So we thought so far Made in India was limited to maybe defense, largely moving on to steel. That's good news. I think Made in India is across sectors, and I think but this centered around defense. Yeah, it you began would say, with yeah, this. because that has a huge scale. Yes. Because defense has a huge scale. In scale and size, defense is obviously big. Because we are huge importers, our needs are huge. I would say this is basically what picking up from what Prime Minister has been saying from day one. I think this has been a slogan: "Make in India, Made in India." So I think we are picking up and now getting into the detailings of this. And steel being India is really big in steel sector. So and we have grown. We have seen major steel majors coming into India besides our own domestic majors. I would not mention the company, but we have globally one of the biggest steel companies in India operating in India. So I think it's a ramification of that, and plus I think if you do that, you are able to kind of set quality standards for your own steel companies. And worldwide, I think everybody wants those kind of things to be established on a global level. Right. What are you providing? Is your Indian steel as per global standards? Are the specifications there? So I think once you have these kind of standards as well as QR code, I think it will be easy for anybody to come and check your products, and that kind of belief sets in there. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख देखने को मिला। सिंगापुर में बिकवाली तेज रही। स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1%, हांगकांग का हैंग सेंग पूरे 1%, और जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण कारोबार बंद रहा, इसलिए वहां की कोई सूचना नहीं। लेकिन चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की तेजी आई, यानी दक्षिण कोरिया, हांगकांग और चीन में लिवाली तेज रही है। यूरोपीय जोन की ओर चले तो वहां भी मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% घाटे में था। फ्रांस के कैक 40 में 0.2% की तेजी थी। जर्मनी का डेक्स भी 0.1% लाभ के साथ चल रहा था। US stocks ended higher yesterday and on optimism that the Federal Reserve may be done raising interest rates and that the economy is still resilient. The Dow Jones Industrial Average rose 0.53%, Nasdaq Composite Index added 0.49%, and the S&P 500 gained 0.44%. Look at the oil prices, where oil prices dipped around 1% today, extending losses after postponement of an OPEC Plus meeting stoked expectations that the group might not deepen output cuts next year. In intraday trade, Brent crude was trading at $81.14 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $76.27 per barrel when reports last came in. आइए चले अंत में सर्राफा बाजार, जहां सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। And now a look at the headlines, friends. Key domestic indices end in red. Sensex closes at 66,018. Nifty settles at 19,802. Prime Minister announces completion of Global Digital Public Infrastructure Repository and creation of a social impact fund for Global South. And Indian steel gets Made in India tag. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. Namaskar. मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।